See, for India, I can see because we have a lot of tradition and everything, right? हम्म Pinpoint that one thing to our customer कि उनकी need अगर हमें समझ में आ हम्म जाती है ना specifically. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगी? Well, a pro wall decor artist. Ask me why. अगर आप उनकी कलेक्शन को देखें तो उनकी कलेक्शन के अंदर आपको हर एक आइटम दिखेगा जो आपके वॉल डेकोर को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। हर तरह की कलेक्शंस है, हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन है, एंड उनका रेजन आर्ट तो ओ माय गॉड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। वो एज एन आर्टिस्ट डे बाय डे ग्रो कर रही हैं, और आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि वो एसडी स्टूडियो सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर रही है। इस टाइम हमारे साथ है, तो लेट्स वेलकम ज्योति। हाय ज्योति, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? ग्रेट 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 ज्योति, आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आप यहाँ पर आए और मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई रियली वांट कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, सो ओवर टू यू। Sure, thank you. And same here. I'm also very excited for this interview. And so, for my introduction, like currently, I am based in Kolkata, and हम्म। I have recently I got married here, and I have started my अच्छा। resin business in last November. हम्म So it's about to हम्म। going to be 1 year यस when I यस will be यस। completing my resin course. हाँ जी। So yeah, I mean currently it's good. I started my हम्म। business, and for Diwali collection, I'm expanding with my candle collection as well. लवली। एंड मुझे लगता है ज्योति, मैं आपको बिल्कुल डे वन से मुझे आप याद हो, है ना, डे वन की क्लास से एंड वहां से लेकर अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है, इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स आप लेकर आई हैं, आर्ट वर्क्स आप लेकर आए हो स्टूडियोज के सेकंड सीजन में, इट जस्ट जस्ट ब्यूटीफुल, सिंपली ब्यूटीफुल, लव द कलर कॉम्बिनेशन। Thank you. All because ऑलराइट। of your guidance. नो ज्योति, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। एक होता है ना कि अडेप्शन पावर होनी चाहिए, वो अडेप्शन पावर आपके अंदर है, ठीक है। सो सारा क्रेडिट आपका, ठीक है, मेरा कुछ नहीं। ऑलराइट, सो ज्योति, आपके बारे में और जानने के लिए ना मैं आपको लेके जा रही हूँ फ्लैशबैक में, ठीक है, आपके बचपन के दिनों में, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है ना। कोई भी किसी का दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट हो गया या किसी की Hmm. कही हुई कोई बात हो गई, वो दिल को छू जाती है और लगता है कि यार हम भी एक आर्टिस्ट है, हम भी आर्ट में कुछ कर सकते हैं। सो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जहाँ कुछ ऐसा हुआ हो? I'll just give you a small summary, like how all it started. So चलिए। actually, I was always good in art and craft. So हम्म during my schooling, graduation, and throughout my office time, I was always हम्म participating in activities wherein we need to do something with art and craft. So in schooling हम्म also, I used to print, hand drawing my farewell T-shirts and gift it to my हम्म friends. And always हम्म। participated in different activities. So बचपन से ही मेरा art and craft में अच्छा हाथ था. And I जी। used to make drawings also. So people used to appreciate me and everything. So हम्म ये continue raha. But how I started this raising journey is because when I recently got married in Kolkata, so I had to हम्म। quit my job. I was doing investment banking job for last 8 years, but हाँ। my office was in Gurgaon, and in Kolkata अच्छा। I could not, search a good job for me. So what हम्म। happened is I was just scrolling down the Instagram page, and suddenly what happened is like मेरी sister-in-law को baby boy हुआ था. So I अच्छा। just saw a post wherein that baby boy frame, wherein we are putting all the small things of baby and creating a frame. So I thought of यस। gifting that baby boy frame to my sister-in-law. हम्म But when I हम्म asked for the costing of that frame to the person, हम्म so it costed me like 3,500 or something like that. So I हम्म was like कि यार ये तो मैं भी बना ही सकती हूँ ना, let me see how it goes. हम्म So I was try हम्म searching YouTube and everything, and हम्म while scrolling Instagram only I got your page ad, हम्म SD हम्म Studios ad, and I just हम्म opted for it. I inquired about your page, and from हम्म। there I started this raising journey till now. ओह,
लवली लवली एंड Yeah. वही इवन सबके साथ अपनी टीम के साथ डिस्कस करती हूँ कि स्टूडियोज में ये इंटरव्यू सेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पे जाकर आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देखते हैं, बट वो आर्ट वर्क तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या चीजें पार कर कर आए हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, जानना बहुत जरूरी है। Right. सो ज्योति, थ्रू आउट द टाइम, जब आपकी सारी चीजें हो रही थी, एज यू सेड कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थे, तो आपकी जो स्टडीज है वो किन किन चीजों में रही होंगी? कॉमर्स बैकग्राउंड से थे आप? Yeah, finance background. I completed my graduation in finance, and straight ओके, after that, I opted for job. ओके, लवली। सो आपकी किस उम्र में शादी हुई? Just 1.5 year back, so I was 29. So ओके, ओके। recently, yeah. सो ज्योति, मतलब हाउ यू कंपेयर योर बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ? कितना डिफरेंस आया शादी के बाद आपके लाइफस्टाइल में, आपके आपके थॉट प्रोसेस में, और आप एज एन आर्टिस्ट कितना आप डिफरेंस फील कर रही है? सी डिफरेंस काफी आया बिकॉज मेरे लिए मेजर पार्ट ये था कि व्हेन आई गॉट मैरिड इन कोलकाता आई वाज फॉर श्योर कि मुझे कोलकाता में कहीं ना कुछ जॉब मिल जाएगी एंड आई हैड 8 years हम्म। ऑफ एक्सपीरियंस वेरी गुड एक्सपीरियंस या। आई हैड but for 6 months I was searching for a job and I did not get a हम्म। renowned job in Kolkata. And हम्म। then I had to go for this reason and my husband also supported me because he knew कि मेरा interest है इन सब चीजों में. दैट्स लवली। So I opted for it. तो डेफिनेटली वो जो एक शादी से पहले की एक लाइफ थी जॉब वाली लाइफ एंड नाउ आई एम हम्म। डूइंग माय ओन बिजनेस वेयर इन यस, जॉब में आपको यस। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है यू आर गेटिंग अ हाँ। फिक्स्ड सैलरी in which single-handedly solely I am the responsible person यस, जिसको रॉ यस, यस। मटेरियल के सर्च से लेके प्रोडक्शन से लेके पैकिंग टू मार्केटिंग टू सोशल मीडिया एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली वी हैव टू हैंडल. बिल्कुल। So no doubt this is a very tough job, but हम्म। on side by side, obviously it's your own. You own या। this business. So that feeling हाँ is जी। also nice that obviously, see, for any startup business, you need to do हम्म। some investment, right? So वो हम्म। जब इन्वेस्टमेंट लगता है तब आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि रिटर्न नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट लगता है हम्म। बट इवेंचुअली यू नो you have to be patient you यस, you यस, you need यस। to keep patience कि हाँ eventually it will grow. तो वही राइट। है I'm just hoping for the best. It's still 1 year, so I'm trying हम्म। to eventually I will be doing workshops. I will be doing different segments in Raisin itself for corporate gifting everything. So हम्म। yeah, it's quite a tough job also, but it's quite interesting also. Okay, lovely, lovely, Jyoti. And I think the way you are explaining everything regarding your experience, regarding your life, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इसी पर्टिकुलर ट्रेल से होकर गुजरे। पहले कॉर्पोरेट में थे, देन सडनली रेजिन के अंदर, आर्ट इंडस्ट्री के अंदर आए। तो बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। ज्योति, अब आप मुझे बताइए, वो पहला दिन जिस दिन आपके सामने पहली बार रेजिन का सामान आया और आपको रेजिन के साथ बनाना था, ठीक है, Hmm. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ बिगाड़ा या सब कुछ सही हुआ? कैसा था वो दिन? See, if I tell you, the first class of SJ Academy is introduction class, right? तो जब ये एक्चुअली मेरा घर दूसरी जगह है एंड दिस इज माय स्टूडियो वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ व्हिच इज इन डिफरेंट हम्म। एरिया हियर आई वर्क. हम्म। सो सब सामान वामान जी जाने के बाद में व्हेन आई फर्स्ट attended my first session introduction class, I don't know if you can see that behind, that was the result. यस। So Sharad ओह, sir also, लवली, that was my लवली। first attempt and I got lot of appreciations for this and I was so happy that I was like कि ठीक है मेरा इसमें हाथ बैठ बैठ सकता है कुछ चीजें होती है हम्म। ना कि आप कर सकते हो कि नहीं कर कर सकते हो. सकते हैं, ट्रू, राइट. ट्रू, ट्रू। So it राइट, was एंड मुझे really लगता है nice. कि हाँ, और जो पहली बारी में इतना ब्यूटीफुल आउटपुट बनना ना, अपने आप में आपको और ज्यादा मोटिवेट करता है कि अगर मैं Right. फर्स्ट डे ये कर सकती हूँ तो मैं 10th डे या हाँ. 20th डे क्या करूंगी, है ना? I can do, I can do it, something like that सो feeling. एज यू सेड, एज यू सेड ज्योति, आपको नवंबर में 1 साल हो जाएगा रेजिन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। सो इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, और आज आप अपने आप को एक कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करती है? I feel कि I am good in this. I won't say I am best because market में raising के लिए बहुत competition है, बहुत competition है. And दूसरे artists throughout the industry, like throughout world, it's a worldwide product, raising products. So हम्म। उनके products को देख के मुझे बहुत motivation आता है कि हाँ मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है. And उस वक्त लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. Reached at the top level of it, but as per the 1 year experience if I will say
बहुत मिस्टेक्स भी हुई, बहुत सारा रेजिन कलर वेस्ट हुआ, रूम का हालत ट्रू। खराब हुआ, कपड़े खराब हुए, बहुत रोना भी हुआ, ऑर्डर्स नहीं आए, वो एक डाउन टाइम पीरियड भी था। सो जी जी। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए इस पूरे एक हम्म साल में। काफी कुछ एक्सप्लोर करने मिला एंड नो डाउट बहुत कुछ सीखने मिला, बिकॉज आप सोशल मीडिया में इतना नहीं एक्टिव होते थे यूजुअल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, बट आप इस इंडस्ट्री में हम्म जब आ जाते हो तो आप कैसे सोशल मीडिया हैंडल करते हो, कैसे लोगों को हैंडल करते हो, कैसे आप हम्म कस्टमर्स, एक जॉब करना और एक लाइव कस्टमर के साथ डील करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, और उसके बाद में भी अगर उन्हें अच्छा नहीं लगे तो वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम्म। जीना। सो एंड मे बी जी अच्छा लग जाए तो वो अप्रिसिएशन के साथ जीना। सो देर आर लाइक जी। मल्टीपल मिक्स्ड फीलिंग्स इन दिस फील्ड। सो हम्म। एवरीथिंग करंटली आई कैन से कि एक साल में मैंने सब कुछ फेस कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, चैलेंजेस भी हैं। So I have learned it, and I'm sure I will do something more in फॉर this. श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। सो जितने भी न्यूबीज हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो रेजन के अंदर अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, सो एज अ रेजन प्रो आप उन्हें क्या सजेशन देंगी, क्या सलाह देंगी कि वो किन चीजों का ध्यान रखें? आई वुड से कि मैंने जो जो गलतियां की, जैसे मुझे भी यही होता था दूसरे आर्टिस्ट को देख के ना, कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बट आई थिंक फॉर द न्यू कमर्स आई विल से कि आप लोग किसी एक चीज पे फोकस करो, उस पे अच्छे से हम्म ध्यान दो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। यूजुअली शुरू हम्म। शुरू में क्या होता है ना, ये आर्टिस्टिक फील्ड में हम लोगों का ऐसा होता है कि सब कुछ कर ले, बट वो आपको बहुत मेसअप कर देगा। दैट इज नॉट, वो राइट आपका राइट एक राइट। चीज में आपको अच्छा नहीं कर पाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज हम्म। यू नीड टू जस्ट मेक योर वन सेगमेंट जिसमें आप अपना पर्टिकुलरली 100% दीजिए, एंड उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई न्यू। फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर ज्योति। एंड ज्योति, आप मुझे बताएं कि इससे आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा एक सेगमेंट है किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, आर्ट इंडस्ट्री हो, क्लॉथिंग इंडस्ट्री हो। हर एक इंडस्ट्री जो है वो अपने डिजाइन, अपने आइडियाज सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करती है, जस्ट टू अट्रैक्ट मास ऑडियंस, नॉट इवन पैन इंडिया और पैन कंट्री बट ग्लोबली। सो एज एन आर्टिस्ट, आपको सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट लगता है, और वो आपकी कितनी मदद कर रहा है आपके ब्रांड को ग्रो करने में? तो यस, एज यू से कि सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब से डिजिटल वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है, करंटली वी आर सीइंग कि हम लोग जो भी अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश करते हैं, एवरीबडी इज ऑन डिजिटल। सो राइट। we have that this major platform which is Instagram, Facebook and other social media, which is very helpful because हम लोग जो customers expect करते हैं, हम लोग उसी के through expect करते हैं, and definitely हम लोग how we perform our reels, like the Instagram algorithm and everything, how it works. So I think हम्म। all the artists and all the business people need to have that basic knowledge of marketing, then only they can survive हम्म। in this world for the social media. राइट So it is राइट very राइट very राइट। important, and even I was planning that मैं ना correspondence थोड़ा सा marketing का social media का course कर लूँ, that will help me grow, because as a राइट। individual आप सब कुछ manage नहीं कर सकते, and social media handling is like a full time job, either you keep one हम्म person or either you do. So it is हम्म very very important, and digital world में social media से pros and cons दोनों है, because as you see हम्म there are a lot of fraud happening in digital market. हम्म। So in digital world आप लोग को ये social media के through आप लोग, like people are there who are doing fraud with us, with other people who are taking orders, not या। getting money. हम्म तो वो भी एक चीज है जो लोगों को अवेयर रहना जरूरी है with that हम्म। important, but there are pros and cons for everything. राइट राइट। एंड मुझे लगता है कि ज्योति, डेफिनेटली मैं आपकी सारी बातों से अग्री करती हूँ, बट ऑनेस्टली आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही हैं, और धीरे धीरे आप से आर्ट वर्क्स, रील्स, वीडियोस एंड पोस्टिंग ये सब शुरू कर रहे हो धीरे धीरे, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। और मैं चाहती हूँ कि आप जो जितना आप एक्चुअली में अच्छा काम करते हो ना, वो सारा का सारा काम पूरी दुनिया देखे, और वो समझे कि कोलकाता में एक आर्टिस्ट है और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ज्योति, आपको अगर किसी को भी इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? So my brand name is Manokamna Artsy. ओके, सो व्यूअर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, यू हैव टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। आपको वॉल डेकोर, होम डेकोर, रेजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें कस्टमाइज करवानी है इन एनी कलर, एनी डिजाइन, सो यहाँ पर ज्योति हैं, वो सब कुछ आपको कर कर देंगे। एंड कोलकाता में जितने रहने वाले लोग हैं, आपके तो शहर में रहती हैं ये, ठीक है, तो आपको बस इन तक पहुंचना है, इन तक जाना है, और अपना मन पसंदीदा रेजन प्रोडक्ट इनसे कस्टमाइज करवाना है, राइट ज्योति? Right. Perfect. ऑल राइट ऑल राइट। सो ज्योति, आप अब मुझे बताइए कि
जैसे रेजिन इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है ना, स्पेशली इंडियन रेजिन इंडस्ट्री, वाई? हम्म, क्योंकि वेस्ट हमसे कई टाइम पहले शुरुआत कर चुका है रेजिन के अंदर, एंड डेफिनेटली उनका जो सेगमेंट है वो हमसे थोड़ा सा हाई है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी R&D हमसे पहले कर चुके हैं। सो हम्म। एज एज एन इंडियन आर्टिस्ट, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर दें कि आप उनको कैसे compete करेंगे, और आप उनका वो लेवल, वो बैरियर कैसे ब्रेक करेंगे? व्हाट आर योर प्लान्स एंड व्हाट आर योर आइडियाज? See, for India, I can see because we have a lot of tradition and everything, right? हम्म So हम्म definitely यहाँ पे जो लोगों का एक mindset है, we just have to, हम्म pinpoint that one thing to our customer कि उनकी need अगर हमें समझ में आ हम्म जाती है ना specification, then we can grab your deal. ऐसा वाला बात है, यस right? So यस in India, we can if we know that this is a culture and this is a tradition. According to culture, if we हम्म create something and if we are हम्म ready to sell, then I'm sure that this industry can grow a lot more in India as well. So राइट that is what my thought is that in corporate gifting, maybe some what I felt in this industry is sometimes people feel ki, see, resin products are expensive, that we know, right? Because there is a lot of costing involved in this. So sometimes या people feel, in India कि इतना पैसा हम एक इस शो पीस में एक चीज में क्यों खर्चे, हम कुछ यूजफुल हम्म दे देते हैं, इतने में तो कुछ या काम की चीज आ जाएगी. तो वो माइंडसेट चेंज करना एक बहुत जरूरी है. सो आई एम थिंकिंग कि कुछ जी हमें में ही ऐसी चीजें निकालनी पड़ेंगी जिसको हम एज ए यूजफुल प्रोडक्ट दिखा पाए, बट दैट इज नॉट जी जस्ट अ जी शो पीस थिंग. सो राइट दिस इज राइट व्हाट राइट नीड्स टू बी डन, आई विल. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लान इंडीड, एंड अगर आप इसी विजन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू डेफिनेटली कैन मेक अ डिफरेंस. Okay, and Jyoti, I do remember that day जब हम अल्कोहल इनकी क्लास में थे and we were making clutch, तो you were the one जिनका सबसे पहले वो पैटर्न बना था. तो आप मुझे वहां से बहुत ही क्लियरली याद हो, एंड बहुत अच्छा आपका हमेशा परफॉर्मेंस रहा है. एंड जैसे मैं अभी व्यूअर्स के साथ बात ही कर रही थी कि बहुत यूनिक स्टाइल है, सबसे पहली बात. एंड आप इस यूनिकनेस को ना कभी खत्म होने मत देना. आपके जो अपने पैटर्न्स, अपने डिजाइन है ना, उन्हीं को फॉलो करिए. आपका आर्ट वर्क हमेशा सबसे हटकर ही बनेगा. राइट. सो ज्योति, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपके अपकमिंग सेट ऑफ गोल्स के बारे में. सी, आई नो एज एन आर्टिस्ट, आई विल नॉट आस्क द क्वेश्चन कि आने वाले 5 सालों में क्या करोगे, आने वाले 10 सालों में दैट्स अ क्या बेसिक करोगे. आई नो क्वेश्चन इन आवर इंडस्ट्री. आर्टिस्टिक प्रोसेस इतनी ज्यादा है ना. राइट. सो बिल्कुल छोटे छोटे प्लान्स की तरफ ही हम ध्यान दे पाते हैं. तो आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है कि मुझे ये चीजें अपने लिए, अपनी आर्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए पूरा करना है? सी, करंटली मेरे पास लिटरली दो तीन चीजें हैं. एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस सीजन टाइम, राखी दिवाली, मैं वो चीजें नहीं कर पा रही हूँ. बट डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप मुझे लेना है अबाउट रेजिंग वर्कशॉप. बिकॉज वेन एवर आई कम हम्म अक्रॉस टू माई क्लाइंट्स, टू माई कस्टमर्स, देवर आस्किंग मी कि आप ये सिखाते भी हो क्या, आप ये सिखा सकते हो क्या, आप ये हम्म करते हैं. सो मेरे लिए एक वो मेजर पार्ट था कि कोलकाता में ऑफलाइन आई विल गेट people who really want to learn this workshop, raising attend हम्म this raising workshop. राइट. So my next plan is definitely at the end of this year or maybe in the starting of this year that I will be starting workshops for the resin. And in addition, like हम्म as I said, for Diwali collection, I have started candle makings also. So that एक diversified हम्म हो जाए जिसके अंदर मैं resin और candle को mix करके I'll make something. So उससे एक मेरा portfolio हम्म diversify हो जाएगा. So that हम्म I am doing for future. Also, as I said, corporate gifting, because हम्म I had a contact of 8 years of investment banking, so I definitely have a good contacts. हम्म But I'm not getting that, हम्म like how to reach. I know how to reach, but definitely I'm not getting that time and that situation wherein I'll start for the corporate gifting. Because corporate gifting segment में हम्म अगर एक बार you can uh, go on, no, so definitely you will be getting a bulk orders only for corporate gift. So that is my श्योरली. major segment for राइट. future, that I should use my हम्म 8 years contact and I should go ahead with corporate gifting or something and should do something in this field. राइट राइट. परफेक्ट. आई गेस आई थिंक आपके प्लान बहुत सॉर्टेड है, और मुझे लगता है जब आपका पाथ इतना क्लियर हो तो सिर्फ उसको फॉलो करना है, फिर तो मंजिल आ ही जाएगी कभी ना कभी. है ना? Right. तो ज्योति, आप मुझे बताएं कि, हाँ जी, तो मुझे बताएं कि अभी तक आपका जो ब्रांड है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना आपने रेवेन्यू से कमा लिया है? See, if I can see that मेरा जितना भी अगर समझिए इन्वेस्टमेंट लगा है,
उसका मैंने 40% रेवेन्यू आया अमाउंट. वाओ, दैट्स क्वाइट अमेजिंग आई गेस। एंड आई थिंक आपको बहुत ही छोटा सा टाइम हुआ है ना रेजिन इंडस्ट्री, पहले तो सीखने में चला गया है ना, फर्स्ट Right. 4-5 मंथ, और उसके बाद फिर आपने अर्न करना शुरू करा। बट दैट इज ट्रूली अमेजिंग एंड अ ग्रेट स्टार्ट, आई मस्ट से। और मुझे लगता है कि थर्ड सीजन में आपके पास एक लंबा सा लिस्ट होगा मुझे बताने के लिए कि ऐसा हुआ। एंड आई रियली वांट कि I'm स्टूडियोज जो है वो sure. आपके लिए वो सारा बिजनेस लेकर आए जो आप चाहती हैं। तो आप राइट, मुझे थोड़ा सा बताएं। सेल्स में आज इशू होता है लाइक इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली. जी जी जी। मतलब एक टाइम आता लाइक एक्चुअली व्हाट आई एक्चुअली देयर वाज एग्जीबिशन हियर इन कोलकाता, so I've attended that हम्म exhibition, and with that exhibition I got lot of orders and contacts. So हम्म that one part I am also looking forward for the future, but definitely for हम्म sales there is a struggle, but yeah, हम्म। definitely will try. बट आई थिंक ज्योति, अभी आप सोलो एंटरप्रेन्योर है एंड आप अभी सारा का सारा आप काम खुद कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आप Right. 10 पर्सनालिटीज की जो स्पेस है वो आप खुद से आप सारी फुलफिल कर रहे हैं। यू नीड Actually, अ टीम फॉर श्योर, है ना। right. सो स्टार्टिंग के टाइम पर ये सब स्ट्रगल्स जो है वो हर एक आर्टिस्ट देखता है, हर एक स्टार्टअप देखता है। और मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे आपकी जो टीम है वो ग्रो करनी शुरू होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो वैनिश हो जाएंगी। Right. सो ज्योति, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लास्ट में बताएं कंप्लीटली रिगार्डिंग योर ब्रांड। आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है। Okay. So my brand which stands is Manokamna Artsy. So why I have हम्म chosen this name is because Manokamna stands for like your wish. So what my हम्म। tagline is that you wish and will make it out. So whatever you wish, we'll try to make as according to your wish, right? So That's so nice, yes। right. So that is why I have given my logo as a genie. If you will see my हम्म logo, there is a genie in that. So accordingly, I हम्म have designed my logo, which is Manokamna Artsy. So my brand is हम्म। currently based in Kolkata, but my delivery अच्छा। is pan India, हम्म and I have been delivering throughout like every place. हम्म So in my brand, what people can get is like all the home decor products, which includes tables, हम्म mirror, wall clocks, and all the हम्म customization products like flower हम्म preservation. Like, if you will ask me the most selling product of mine this last month, I think I have हम्म created 70 to 80 pieces of 10 by हम्म। 10-inch frame, wherein people are getting their Varmala preserved. So that राइट। is why my most sell product. So हम्म that is what like whatever customized products people can get for gifting purpose. I have created like phone stands, the small frames, the tray हम्म sets, and हम्म Rakhi, during Rakhi or Diwali also I am making हम्म the thali for Diwali. हम्म। So there are vast range of products, but the major thing is all these wall clocks, tables, and mirror part, and other corporate gifts uh, लवली for the. लवली लवली। एंड आई थिंक आपने जैसे अपने ब्रांड को एक्सप्लेन करा कि जैसे आप जो विश आप चाहोगे वो विश पूरी हो Right. जाएगी। सो इट क्लियरली सेज कि आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करवाना है तो वो कस्टमाइजेशन जो है वो ज्योति अपने ब्रांड के अंदर आपको कर कर देंगे। तो Correct. दैट्स ट्रूली अमेजिंग। एंड ज्योति, आपके बारे में जानकर, आपकी जर्नी के बारे में जानकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आई एम प्रीटी मच श्योर जितने भी अपकमिंग रेजिन आर्टिस्ट आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कब कब किस स्टेज पर कौन से स्टेप्स लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना। 8 साल का करियर जॉब करने के बाद यहाँ पर अगर आप आप आए हो अपना ब्रांड लेकर, तो कुछ तो बात होगी इस इंडस्ट्री में, है ना। सो Right. दैट्स या। सो नाउ ज्योति, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंटरव्यू, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओके, जहाँ Okay. मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चंस और आपको देने होंगे रैपिड सवाल, ठीक है, चलिए। Okay. I will try. Yes. All right, rapid fire round with Jyoti. So, Jyoti, your first question is about your favorite color to work with in resin art. Steel blue. Okay. What you prefer most, acrylic color or epoxy resin? Epoxy resin. Okay. Abstract art or realistic art? Realistic art. Resin jewelry or larger resin products? Larger resin products because I have less Okay. patience. Glossy or matte finish? Glossy. Opaque pigment or metallic pigment? Metallic pigment. Okay. Which is easy? Working with alcohol ink or concentrated ink? Concentrated ink. But I like more alcohol ink. But easy, of Yes. course, concentrated. All right. Uh, Early bird or night owl? Night owl.
Okay, indeed. Every artist. All right. Beach person or mountain person? Mountain person. I'm born in Nepal. Okay. Acha. Oh, lovely. Okay. Is there any favorite art exhibition you have visited in recent days? Um, art exhibition I haven't visited, but definitely I was a part of exhibition. Okay, okay. Is there any dream collaboration with any artist or any firm you're looking for? I am looking for collaboration, but I haven't decided yet. Okay, I think you're already collaborating with SD Studios. एक Yeah, तो SD आपका complete हो Studios रहा definitely. है and many more to come for sure. यहाँ से community build up होगी, आप बड़े और artist से मिलेंगे and I Right. think फिर collaboration का कोई end नहीं है. So my last question to you is about your favorite type of music जो आप ऐसे relax होने के लिए, शांत होने के लिए आप सुनते हो, तो किस तरीके का music आपको पसंद है? I like the soothing songs, maybe the romantic slow song. Okay, so is there any favorite? आप Um, गा के भी सुना सकते हो. okay, so this is a very old song which I have Hmm. sung for my husband also in my marriage. Okay, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ. कहता है पल पल तुमसे हो कि दिल ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे हो कि दिल ये दीवाना एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर मुझसे दूर नहीं जाना नहीं प्यार की प्यार तो किया तो निभाना प्यार निभाना प्यार तो किया निभाना तो निभाना. Lovely, 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 lovely. Thank you so much, Jyoti, for being so wonderful. And I really want कि ये studios का second season आपके लिए ढेर सारी success लेकर आए और आपकी सारी wishes, आपकी सारी manifestation पूरी हो. जैसे आप लोगों की wishes पूरी करती हैं, वैसे आपकी भी सारी wishes पूरी हो जाए इस बार. Okay, thank so you I'll so see you super soon much. and thank you so much. Thanks to you. Okay, I'll see you. Thank Bye you to bye. ST Academia and the team also We are for equally glad, helping me Jyoti, to have throughout. you. You deserve every bit of it. Thank All you. right. Most welcome. Bye bye.